If I break it into two words, hydro and carbons. What does hydro mean? Hydrogen. And carbon, you know, right? So if you look Yes. at all these compounds on the screen, they are all hydrocarbons, beta. ये सब hydrocarbons हैं. Now, when I say hydrocarbons, I mean compounds containing carbon and hydrogen. Now, these compounds containing carbon and hydrogen and all their derivatives, इन सब के ऊपर अपना एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का बुक है, which is your chemistry part 2 or your organic chemistry. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनके ही आगे पीछे घूमने वाले हैं सब. अच्छा, do you see any difference in these compounds on the screen or all are similar to you? Different. Your voice was breaking, beta. Sir, they are different. Different. They are different. Okay. In what way are they different? Can someone tell me? Double Sir, bond the and triple bonds, bond. saturated, Bonds are unsaturated. different. Very good. So I guess everybody is very much aware of this thing, what we're talking about. So if I look at this hydrocarbon, this is a compound containing carbon and hydrogens only. Same is with this. Similarly, it is with this. The difference which you see in these three, I'm not considering these two. The difference which you see in these three is here all are carbon hydrogen or carbon carbon single bonds. Here if you see there is one carbon to carbon double bond, and here if you see there is one carbon to carbon triple bond. Fine. Acha. Now there is something which we should know, which we call as saturated and unsaturated. So saturation means all valencies satisfied in this term. इसके terms में अगर मैं बात करूं, saturation means all valencies satisfied. अगर आप यहाँ देखिए बेटा, कार्बन का सब valencies satisfied है, नहीं यहाँ पे भी satisfied है, यहाँ पे भी satisfied है, तो मैं इसको unsaturated और इसको saturated क्यों बोल रहा हूँ? Can someone try to guess that? In all these compounds on the screen, sub compounds में carbon का valencies are satisfied. Still, I am calling these three compounds as saturated hydrocarbons and these two compounds as unsaturated hydrocarbons. Abhin? Saturated hydrocarbons have single covalent bond. Saturated hydrocarbons have single covalent bond. Okay. Here also this has single covalent bonds. See, यहाँ पे भी इसके पास single covalent bonds है ना, कार्बन हाइड्रोजन के. तो what is differentiating over here to make it unsaturated? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. कार्बन के बीच का bond, correct. Although the valency has been satisfied, the differentiating factor over here is to satisfy its valency, it has bonded with itself. It has bonded with itself. खुद के साथ bond बना लिया और single नहीं double and triple bond बना लिया. That is why we are saying this is unsaturated. इसको कोई दूसरा atom नहीं मिला bond बनाने के लिए, इसलिए आपस में ही bond बना लिया. समझे बेटा? That is why we are calling it as unsaturated hydrocarbon. You remember मैंने last class में catenation का बात किया था? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yeah, और मैंने आपको समझाया भी था what is catenation. It is the property by virtue of which atom forms bond with itself, right? Remember? Yes. Yes sir. अच्छा, फाइन. सो यहाँ पे कार्बन का इस तरीके से क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन दिखाता है, एंड कार्बन इज दैट एलिमेंट व्हिच शोज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैटेनेशन इन ऑल अदर एलिमेंट्स. सब एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा कैटेनेशन अपना ये दिखाता है, हाइड्रोजन दिखाता है. ठीक है, ये इसको और डिटेल में जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे वी विल सी. अच्छा, नाउ लुक एट
हाँ जी बच्चे, oops, I'm so sorry for that. Yes, ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Anyone, any idea? Yeah, you can read it obviously. Read तो मैं भी कर सकता हूँ. Petrol in automobiles, coal and steam engines, LPG domestic cylinder, paraffin wax and candle. So these are some uses and some compounds which we are using in day-to-day life. ये ऐसा कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है. Now, why am I teaching you this? What is the connection of this with the topic which we are learning? Anybody? Guys, am I audible? Yes. Yes. हाँ जी बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, what is the connection of this? इसका connection क्या है बेटा? पेट्रोल, कोल, LPG, पैराफिन वैक्स. It's very easy बेटा. Sir, they are Carbon combustible. Okay, they are combustible. Fine. वो तो उसकी property हो गई, which I am not denying, which is correct. Yes, very good. Anything else? Anything else बच्चे? संस्कार? So they are used as a fuel. हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चे? They all are flammable. क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की भी. Guys? Yes, sir. हाँ, what is the other connection between them? They all are flammable. Okay, combustible, flammable, one and the same thing. So they are used as a fuel. They are what beta? They are used as fuel. Very good. Yes, Yes. sir. One more point. All of them. अगर मैं देखूं, इनको कहीं ना कहीं we are using as fuel. यहाँ पे for making of food, यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए, यहाँ पे again engine चलने के लिए, and यहाँ पे again it is used for burning of the candle so to give us light. Very good. Very good observations. आप लोग के observations absolutely एकदम सही है बेटा. आप डरो मत बोलने से पहले. आप बोलो, बिंदास बोलो. Talk. The more you talk, the more you ask, the better it is for you, बच्चे. Anything else common in them? आपने बोला it's flammable, it's combustible, they are used as fuel, which is absolutely correct. अगर So अगर मैं when they are burned, carbon dioxide releases is being released. very good. So when they are burnt, इनमें से कोई भी चीज को हम लोग burn करेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. It's a very good point actually. तो अब बच्चा मुझे ये बात बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इसमें से, मतलब इसके अंदर कार्बन होगा पहले से, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. Yes. जब मैंने Yes, sir. when I Yes. burnt it, when combustion was going on, combustion क्या, what is a law of conservation of energy? Food, mass can or atoms can neither be created nor be destroyed, right? They are only converted from one form to the other. So can I say all these are nothing but they are higher hydrocarbons? Yes. Okay बच्चे. Yes, So sir. ये the petrol which you are using, the coal, the LPG, the paraffin wax, and many other examples, all are examples of hydrocarbons. They are higher chain, heavy chain hydrocarbons. ठीक है. Now this 90% of the energy requirement of the entire world is coming from hydrocarbons. ठीक है. Apart from that, hydrocarbons can have different applications, like see, you can see methanol, ethanol, acetic acid. Okay. Coal and petroleum, again, very complex mixture of hydrocarbons. Okay. Then there is something called as fractional distillation, destructive distillation. Have you heard of this fractional distillation? No, sir. No, sir. No, sir. Fractional distillation नहीं पढ़ा आप लोग ने? Okay. No.
Okay, fine. Many of the polymers like polystyrene, dyes, and drugs, they are nothing but hydrocarbons. Now, petroleum से हमको क्या मिलता है? Alkanes and cycloalkanes. This is what we get from petroleums. Now, have you seen this kind of a tower in the lower classes? जहाँ पे fractional distillation होता है पेट्रोलियम का. पेट्रोलियम क्या है बेटा? It is crude oil. ठीक है, जो हम लोग को समुद्र के तट से मिलता है, refineries and all. You know that? Yes. आपको पता है मुंबई में there is a place called as Bombay High. Yes. Yes, वहाँ sir. पे वहाँ से क्या होता है? ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, राइट? पेट्रोलियम निकालते हैं. अब बेटा ये जो पेट्रोलियम निकालते हैं, जो क्रूड ऑयल मिलता है हम लोग को समुद्र से, सी से, दैट इज नॉट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी 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 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. इट इज अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. अब वो मिक्सचर को अलग कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. हाँ बेटा बोलो. So fraction distillation is separation is some separation of बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई बच्चे. कौन बोल रहा है? sir अथर्व. अथर्व. हाँ बेटा बोलो, बोलो अथर्व. हाँ सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सर सेपरेशन का काम करता है. सेपरेशन ऑफ. Separation of a compound करेक्ट. in बोलो. in इट्स ओके अथर्व, आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, बट यू कैन स्पीक, कोई दिक्कत नहीं. audible sir. या यू आर ऑडिबल बेटा. सर फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सर मिक्सचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अलग अलग करता है, इसमें से कंपाउंड्स को अलग निकालता है, अलग से एक्सीलेंट, निकालता है. एक्सीलेंट, एकदम सही बोले अथर्व, एकदम बराबर बोला अथर्व आपने. इसको हम लोग कैसे करते हैं अथर्व? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कैसे करते हैं? आपका आंसर एकदम सही है अथर्व. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो अगर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है तो हम उनको अलग अलग करते हैं. हम उनको अलग अलग करने का क्या प्रिंसिपल है अथर्व? इट्स ओके, अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नहीं पता सर. नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा. आपने इतना बोला मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतना बता दिया. अब व्हाट इज अथर्व सेइंग ना, दिस क्रूड ऑयल, दिस पेट्रोलियम जो हम लोग को रॉ मटेरियल मिला है, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी 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 डिफरेंट कंपाउंड्स. इट इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स. व्हाट इज डन टू देम इज, नाउ बेटा एवरी कंपाउंड हैज अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. एवरी कंपाउंड हैज अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. हर एक कंपाउंड एक अलग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर पे गैस बनेगा. तो दिस प्रिंसिपल इज यूज टू सेपरेट आउट द कंस्टिट्यूएंट्स. ये प्रिंसिपल यूज होता है कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए. एंड दिस क्रूड ऑयल को वी आर पासिंग थ्रू अ चेम्बर जहां पे कंटिन्यूसली हीट इज सप्लाइड, कंटिन्यूसली हीट इज सप्लाइड. तो अब एक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम के अंदर 3-4 ये हैं, क्या बोलते तो भी कंपाउंड्स हैं. तो 3-4 तो नहीं, ज्यादा रहते हैं इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स. इसके अंदर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, पैराफिन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, सीएनजी वगैरह, गैस वगैरह भी इसके अंदर होता है. तो कब किस टेम्परेचर पे, हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होता है. जिसका टेम्परेचर कम पे वो गैस बनता है वो पहले निकल जाएगा, जो हायर टेम्परेचर पे गैस बनता है वो बाद में निकलेगा. ऐसे कर करके हम अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स को इसमें से कलेक्ट कर लेंगे. ये देखो, ये देखो बच्चे, this crude oil, this petroleum is actually passed through a furnace जहाँ पे temperature is very high. तो जैसे ही वो लिक्विड को हम लोग इसके थ्रू पास करेंगे उसमें वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे. अब this liquid, this crude oil is made up of so many things. It is made up of gasoline, kerosene, diesel, fuel and so many other things. हर एक का देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है. दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. It's ये देखो. Yes, sir.
petroleum gases which boil below 40 degree Celsius. Gasoline, it boils. What is this gasoline? किसी को पता है? देखो ना बाजू में लिखा है. What is it? आपको कर्सर दिख रहा है बेटा मेरा मूव होते हुए कर्सर? Petrol. हाँ, पेट्रोल. बोलो ना, ऐसे शांत क्यों बैठे हो आप लोग? इट इज पेट्रोल. अच्छा, गैसोलीन इसका नाम है. आप लोग ने कभी हॉलीवुड की मूवीज देखे हैं? Yes, sir. Yes. अच्छा, वो हॉलीवुड का मूवीज में आपने कभी एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर विलन या फिर कोई भी पर्सन हो उस मूवी में, उनको कभी देखा है आई एम गोइंग टू फिल गैस इन माई कार? ये सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो यूएस वगैरह में ना वो लोग पेट्रोल वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो लोग गैसोलीन का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. गैसोलीन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गैस. Yes, sir. समझ गए? इसीलिए वो लोग बोलते Yes. हैं गैस. गैस बोलते हैं वहां पे. तो अपन को अजीब लगता है कि मतलब अरे हम लोग तो पेट्रोल है, पेट्रोल तो लिक्विड है, ये गैस भराने को क्यों बात करता है? क्यों बोलता है वो? क्योंकि गैसोलीन का शॉर्ट फॉर्म इज गैस. ओके, एंड गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल. ओके. अच्छा, ये पता है केरोसिन पता है तुम लोग को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. केरोसिन कहाँ पे यूज होता है? किसी को नहीं पता घर केरोसिन में- कहाँ use? घर में स्टोर में. सर में स्टोव stove में में- यूज करते हैं. वेरी गुड. यस, इसको हम लोग कंबशन के लिए यूज करते हैं. बहुत पहले पता है क्या होता था? जब आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए रहेंगे या फिर बहुत छोटे रहेंगे, जब मैं छोटा था ना, तब ये गैस, हर एक घर में गैस सिलेंडर्स नहीं होते थे, स्टव्स नहीं होते थे. एक छोटा सा स्टव रहता था जिसमें ऐसा वो केरोसिन डालकर उसको ऐसे मैच स्टिक से बर्न करना पड़ता था और तब वो जलता था. आई डोंट नो वेदर आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है. तो उसमें केरोसिन यूज होता था. केरोसिन का कॉमन वर्ड क्या है जो हम लोग यूज करते हैं इन डेली लाइफ हिंदी में? ऑयल. ना भाई ना, हिंदी में. रॉकेल. रॉकेल बोलो, घासलेट बोलो, मिट्टी का तेल बोलो, ये सब सुना है कभी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दैट इज नथिंग बट योर केरोसिन. दैट इज नथिंग बट योर केरोसिन. अच्छा, डीजल तो आपको पता है, फ्यूल भी आपको पता है, राइट? डीजल से क्या चलता है बेटा? कार. Cars and trucks and all, right? तो ये सब, all these are byproducts of petroleum. All actually they are constituents of petroleum. जो कैसे मिलता है? By fractional distillation. Don't worry, fractional distillation in detail हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये सब हम लोग को मिलता है. See this, CNG gas, LNG, liquefied natural gas, ये सब, these are all hydrocarbons. ये सब हाइड्रोकार्बन है बेटा. ठीक है, ये सब ऑटोमोबाइल फ्यूल में यूज होता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कहाँ पे यूज होता है? ये देखा है कभी जिंदगी में? Yes, उठाया sir. बेटा इसको कभी? Yes, sir. अच्छा. हाँ. सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ऐसा देखा है कभी स्टूल, ये स्टोव? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, हाँ, sir. ये देखो, ये डब्बा है ना बेटा, इसके अंदर केरोसिन डालते हैं और फिर इस नॉब को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हैं और फिर यहाँ पे पिन करके यहाँ पे नीचे से आग लगा करके इसमें आग लगती है. आई डोंट नो कितने लोग ने देखा है. ये बहुत प्राचीन हो चुका है अब. ठीक है, बट दीज फॉर्म्स आर वेरी, दे आर मोर पोल्यूटिंग. इसमें से ज्यादा कार्बन निकलते हैं. देन वी हैव पेट्रोल, वी हैव डीजल, दिस वी ऑल नो. तो सीएनजी एंड एलएनजी आर द क्लीन फ्यूल्स. ये सीएनजी और एलएनजी यूज करेंगे, दे आर क्लीन फ्यूल्स. बट पेट्रोल डीजल, दे आर नॉट क्लीन फ्यूल्स. ए बेटा, व्हाट डू आई मीन बाय क्लीन एंड नॉट क्लीन फ्यूल्स? Do not cause pollution. Very good. When what do I mean by pollution, beta? Carbon dioxide and all the other harmful gases which are being released. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes. always remember combustion of any hydrocarbon. किसी भी हाइड्रोकार्बन का combustion will always give you carbon dioxide and water as a byproduct. ये देखो. Other higher hydrocarbons are used as lubricants, solvents for paints. ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको पता चल जाए कि
हम लोग हाइड्रोकार्बन जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज नॉट जस्ट अ कंपाउंड, बट इट इज समथिंग विच यू आर एक्चुअली यूजिंग इन योर डेली लाइफ बेटा। आपको पता भी नहीं होगा आप कितने सारे हाइड्रोकार्बन दिन भर में यूज कर लेते हो, ठीक है। ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन, ये जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे अभी, दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन बेटा, ठीक है। अभी लेट अस सी, actually let us skip this, we will learn this later. What I want you to learn is, ये मैं आपको अभी नहीं सिखाना चाहता, होल्ड ऑन, ये सब मैं आपको डिटेल में बताएगा। I want you to learn nomenclature और naming of hydrocarbons, which is very important, ठीक है। I know ये आपने नो स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, बट आई वांट यू टू ब्रश इट अप। ये आपको एकदम स्ट्रांगली आना चाहिए। क्यों? Why am I insisting on this? Because बोर्ड एग्जाम्स में nomenclature के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, एक क्वेश्चन पक्का इसमें आता है, ठीक है। तो let us see what is this nomenclature। पढ़ा है बेटा ये nomenclature पढ़ा है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. which is the organization which has put forward this nomenclature rules? Anyone? IUPAC. Very good. IUPAC. What is the full form of IUPAC? International Organization of Organic and Pure Chemistry. इसमें ओ कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया? संस्कार, मैंने बताया था एक बार बोर्ड पे आप लोग को, जब मैं आपको International Union. Sir, International Union of National U- Pure and Applied Chemistry. यस यू रिमेम्बर, मैंने बोर्ड पे बताया था आप लोग को जब मैं आपको सिखा रहा Yes, था sir. वो Yes. एलिमेंट्स को नेम करने का। इट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC, इसको IUPAC भी बोलते हैं काफी लोग। अच्छा, अभी व्हाट इज द खासियत ऑफ अल्केन? अच्छा, अल्केन्स अल्किन्स अल्काइंस हम लोग को पता है सब लोग को कि उसको भी यू नीड टू ब्रश अप। पता है। पता हाँ, है, ये sir. पता है ना हम लोग। अच्छा, ओके, कूल, ठीक है। तो अल्केन्स अल्किन्स अल्काइंस में डिफरेंस क्या होता है? बॉन्ड्स का डिफरेंस होता है। अल्केन्स कंटेन ऑल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स, and in alkenes you have at least one carbon to carbon double bond, and in alkynes you have at least one carbon carbon triple bond, ठीक है। am I right or am I wrong somewhere? Yes, sir. Right. अच्छा, fine, very good. Now see this. Carbon carbon single bond. Now each carbon is bonded to 4 other carbon atoms. कल लास्ट क्लास में हमने बात कर रहे थे ना मैंने एक और टेट्रावैलेंसी के साथ एक वर्ड यूज किया था। कौन सा वर्ड था वो? सॉरी, कैटेनेशन के साथ एक वर्ड यूज किया था। कौन सा वर्ड था बेटा वो? Tetravalency. मैंने अभी जस्ट बोला गलती से। टेट्रावैलेंसी, दिस इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंसी, राइट? 4 बॉन्ड्स, है ना बच्चे? Yes, sir. And that is why they are called as saturated hydrocarbons. कार्बन कार्बन का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ओके, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। and beyond reactable at normal room temperature. Previously, alkanes were called as paraffins, which means little affinity. Affinity towards what? Affinity towards other elements, other. Guys, am I audible? Yes. Yes, sir. Hello, guys. Guys, connected? Or I'm Sir, you are just- audible. Sir, voice is breaking. सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। जो आवाज नहीं आ रही है मेरी? Sir, बीच आवाज में आ रहा है, ब्रेक हो रहा break हो है। रहा है। ब्रेक हो रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर। अभी भी ब्रेक हो रहा है बेटा?
No, sir. सर अभी तो ठीक है. connected हो. बीच में आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था. आई डोंट नो व्हाट रीजन, बट आई कनेक्टेड अगेन. सो इज इट am I audible now clearly? Yes, Yes. sir. ओके ओके बेटा. हाँ, सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग. हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम, इसका अपना अल्केन्स का दूसरा नाम प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज पैराफिन्स. पैराफिन्स व्हाई? बिकॉज पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी. लिटिल एफिनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी? एफिनिटी मींस अफेक्शन, लव टुवर्ड्स समथिंग, वांट टू फॉर समथिंग, दैट इज एफिनिटी. अभी पैराफिन्स का क्या सीन है, सॉरी अल्केन्स का क्या सीन है? उनको पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कार्बन का चारों वैलेंसीज अच्छे से सेटिस्फाइड है यहाँ पे, तो इसीलिए उसको कोई दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए. तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ना ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है. अगर मुझे अल्केन्स को रिएक्ट कराना है, आई हैव टू हैव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट हायर टेम्परेचर ओनली व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक, then only they can react. Otherwise, at normal room temperature pressure, they do not react. That is why they are called as paraffins. Little affinity towards other elements. Is this clear, or should I repeat myself again? Sir, repeat. Sir, Are you- repeat. I will repeat. Okay, okay, fine. ठीक है. ये बेटा अल्केन्स का सिंगल बॉन्ड रहता है, राइट? Yes. हाँ. हाँ, fine, very good. अभी all they have strong, all the bonds which are present in any alkanes, they are strong covalent bonds, single bonds. Yes, sir. Yes. Yes. Hey, have you heard about pi and sigma bonds? सुना है कभी? Yes or no? No. No. Forget. No, sir. No, sir. ठीक है, आपको आगे सिखाऊंगा, अभी 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 नहीं, अभी बेसिक सीखना है अपने को. तो बेटा क्या होता है ना, ये अल्केन्स के अंदर जो सिंगल बॉन्ड्स है ना, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के, ये काफी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं. अब ये कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है, अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो रिएक्टिव होगी कि नहीं होगी, इतना बताओ मुझे. नहीं होगी. नहीं होगी. If a compound, if बोलो. सर सर आवाज आपका आवाज break हो आ सर रहा है. आवाज नहीं Sir, आया. voice ही नहीं है. Yes, sir. ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? प्रॉपरली तो कनेक्टेड है वैसे. सर अभी ठीक है सर. हाँ, I am asking, if a compound is stable, will it be more reactive or less reactive? सर less reactive. Less reactive. Less reactive. Less reactive means what? It means it does not want to form bonds with other elements. Sir, it will not. है ना? It will not want to form bonds with other elements. मतलब एफिनिटी का मतलब पता क्या होता है? एफिनिटी मतलब अफेक्शन, किसी दूसरे के प्रति आकर्षण. अब ये जो अल्केन्स हैं, इनको दूसरे के प्रति आकर्षण कम होता है बिकॉज वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसीलिए इनका दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है. अभी समझा तुम लोग को? Yes. हाँ, sir. पक्का गाइस? Everyone, Yes, sir. all of my 24 students present in this class. Sir, 27. अरे तो उसमें 2 मेरा है, 1 सर का है. अच्छा. ठीक है, चलो, let us move ahead. What is the general formula for alkenes? कोई बता सकता है मुझे? हो, किसी को नहीं पता. कौन बताएगा? कौन बता? अमित गर्जे. अमित, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. अमित, मुझे अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला बताओगे बेटा? Sir, can I tell? नहीं, let Amit tell ना बेटा. Amit, are you there बेटा? Yes, sir. कोई बात नहीं. हाँ बेटा, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स आपको याद है? नहीं सर. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. हर्ष, आपको याद है बेटा? सर CH4. CH4, ये तो हाँ बोलो, आगे बोलो. CH4.
हर्ष CH4 जो आपने बताया ना बेटा, ये मीथेन का फॉर्मूला है। मैं पूछ रहा हूँ जनरल, मतलब अगर जनरल फॉर्मूला आपने हमारे पास होगा तो हम लोग किसी भी अल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। What are alkanes? Alkanes are nothing but hydrocarbons which are having carbon and hydrogen in it. उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। Sir, can I tell? Yeah, who's this? दिव्या। हाँ दिव्या बोलो बेटा। CnH2n plus 2. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, CnH2n+2। ये बेटा सुना है ये 10th स्टैंडर्ड में CnH2n+2? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो अभी याद आया मैं क्या पूछ रहा था आपको? yes, आ जाओ। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 where n is what बेटा? n का मतलब क्या होता है यहाँ पे अमित? हर्ष, n का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? What is n? You do not get scared रे बाबा, I am not judging you, I am just trying to interact with you guys. और ये थोड़ा सा हमने 10th में अब भी जस्ट पढ़ा है बेटा। गोपिका बेटा, can you answer what is n over here? Sir, number of carbon. Sir, number. कौन बोला? Of an element. कौन बोल रहा है? Number of Sir, atoms. Atharva. अथर्व। हाँ अथर्व बोलो बेटा। Sir, number of element. Sir, number of atoms. Which atoms? समृद्धि, which atoms? Sir, carbon atom. Carbon atoms. n is equal to the number of carbon atoms. Correct. ठीक है। CnH2n, CnH2n बोले तो इसका जनरल फॉर्मूला। अच्छा Sir, but CH4 भी तो एग्जांपल है ना उसका एक एग्जांपल है। Sir, you are not audible. guys, am I audible बेटा? Hello. yes, sir. Yes, Yeah. sir. I don't know why the other phone got disconnected. Yeah, fine. So what I'm saying is, अगर मुझे alkanes लिखने हैं, alkane having 2 carbon atoms, having 5 carbon atoms, having 20 carbon atoms, having 10 carbon atoms, मुझे simply क्या करना है? Whatever number of carbon atoms I deserve, वो n की जगह substitute कर देने का, and I will get the formula for that alkane. Guys, ये हमने किया है lower side. You remember this, people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर्ष एंड अपना हीरो, याद आया बेटा कि डिफिकल्टी है? इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी बेटा, आई एम ओवर हियर। यस, नो, मे बी? Yes, sir. नहीं, आपको समझा, पता है। Okay, now I want someone to tell me the formula of the alkane having carbon atoms n where n is equal to 5. कौन बताएगा? एक मिनट। C5H12. अच्छा, C5H12, yeah, that's correct. n का क्या डालना है हमको? What are we supposed to 5. in the place of n? You're supposed to put 5. तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 सर पेंटेन है। बोलो बेटा। हाँ, Sir, वेरी गुड, pentane. वेरी गुड। उसका नाम पेंटेन है, which is right. अच्छा, क्या what is the formula of the hydrocarbon having alkane having carbon atom 3? C3 C3H8. C3H8. गाने कौन सुन रहा है? हाँ,
C3H8 वेरी गुड। आप समझ गए कैसे क्या करना है फिर? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट 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 ठीक। N is the number of carbon atoms and 2n plus 2 is the number of hydrogen atoms in that molecule। बेटा जिन लोगों को अभी भी डिफिकल्टी है प्लीज ये फॉर्मूला और ये नोटेशंस लिख लो, ये बहुत काम आएगा बेटा अपने को। आप लोग लिख रहे हो, नोट्स ले रहे हो क्या आप लोग? मैं जो भी बोलता हूँ पढ़ा Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिख रहा हूँ ले सर। लेना बेटा, काम आएगा सब, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। और कैसा है क्या आप लिख लोगे एंड क्या बोलते तो भी if you will go through it and if you have any doubts you know which person to contact, simple। लिख लिया? can we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, yes, sir. okay। Simplest is methane। This is how you write the formula। is second member is ethane। one hydrogen atom को replace करके CH3 ग्रुप लगा देने का, इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं घुसने का अपने को। इथाइल ग्रुप, see this, ये तो पढ़ा, ये तो देखा होगा आप लोग ने। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन के बाद क्या आता बेटा? Heptane. वेरी गुड। हेप्टेन के बाद? Octane. ऑक्टेन के बाद? Nonane. And उसके बाद? Decane. डेकेन। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, this is methane, ethane, propane, butane, but when the number of carbon atom goes on increasing, not only that but there will be side chains। side chain ये word सुना है बेटा पहले कभी? guys No. नहीं? ओके, आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर नहीं किया है guys? नहीं, it is either a yes or a no। so No, sir. हाँ, that is no sir। ठीक, फाइन, ठीक है। आप लोग ने सिंपल हाइड्रोकार्बन ही देखे क्या हमेशा? मैं जैसे आपको सामने दिख रहे हैं वैसे आपने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे CH3 लगे रहा हूं, ऐसा देखा है? Yes, sir. No. तो साइड चेन Yes. आपको साइड चेन। Yes, sir. अरे अभी आप लोग नो बोले, फिर आप बोलोगे तो इसको क्या बोलते थे 10th में? क्या बोलते थे फिर आप लोग इसको? Branch chain hydrocarbon. ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ओके फाइन। अच्छा, a new word to this is your side chain जो अटैच्ड है, ठीक है? ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. अच्छा, Yes. ये ऐसा नेमिंग करना था आपको, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका रूल्स पता है? बिकॉज ये काफी करना होगा आपको यहाँ पे। 11th-12th स्टैंडर्ड में हमको ऐसा नेमिंग वगैरह काफी करना रहेगा। ये आता है? नहीं, हाँ, शायद, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल नहीं। ऐसे आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। नहीं? So when I don't hear anything, I assume that किसी को ये आपको नहीं आता, ठीक है? ये भी नहीं सिखाऊंगा मैं आपको अभी। I do not want you to get confused। No, 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 no। जो मैं ये कर रहा हूँ ना बेटा, आगे भगा रहा हूँ ना, जो मैं आगे भगा रहा हूँ वो मैं आप लोग को बाद में सिखाऊंगा। अभी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसना है, मुझे बेसिक सिखाना है आपको, ठीक है? अच्छा, लुक एट दिस जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप बिफोर? अल्केन के अंदर से अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? वो अल्काइल बन जाएगा।
जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप हो जाएगा CnH2n+1। डू यू नो अबाउट दिस ग्रुप? डू यू नो अबाउट दीस साइड चेन्स जो लगते हैं? यस, नो, मे बी? Yes, sir. ANE निकाल करके YL लगा देने का। तो मीथेन का क्या बनेगा बेटा? मिथाइल। इथेन का क्या बनेगा? इथाइल। प्रोपेन का क्या बनेगा? प्रोपाइल। Propyl. एक हाइड्रोजन उसमें से कम कर देने का बस। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये देखो, this is what I was looking forward to. IUPAC naming rules. I want you to teach, I want you to become perfect in this IUPAC naming rules. A very very important concept. ठीक है? So आपको कोई भी concept दिया रहेगा. Okay? I am right now I am restricting to alkanes. मैं alkanes के बारे में पढ़ा रहा हूँ. We will definitely learn about other compounds also. We will learn about its derivatives. हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप का भी पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप ये वर्ड नया है या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हो? फंक्शनल ग्रुप सुना है आपने? सुना है sir. सुना है ना? वेरी गुड। अच्छा, तो अभी के लिए हम लोग अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, पहले आप वो रूल्स लिखिए, फिर एग्जांपल वाइज हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको नेमिंग करना है। ये देखो, फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, देन name this longest parent carbon chain using the standard naming rules. ए बेटा, standard naming rules हमने अभी देखे थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये बेटा याद आ रहा है कि नहीं? Yes, yes, sir. Yes, At the sir. name Yes, of sir. each side chain मतलब वो ब्रांच चेन जो मैंने आपको आज ही बताया कि ये जो ब्रांच चेन है उसको हम लोग अब से क्या बोलेंगे? साइड चेन वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। At the name of each side chain before the name of the parent। ये सब आप लिख लो, ठीक है? ये इतना, ये पढ़ के या फिर इतना समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग एग्जाम्पल, मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ ये, आप ये लिखेंगे बेटा तो वी विल बी यूजिंग ईच स्टेप फॉर नेमिंग द कंपाउंड। सो वी विल यूज ईच ऑफ दीज स्टेप्स। पहले स्टार्टिंग में हम लोग स्टेप्स पढ़ पढ़ के करेंगे, उसके बाद अपन इतने प्रो हो जाएंगे कि ये स्टेप्स बिना देखे हम लोग फटाफट उसका नाम निकाल सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। So are you writing it or you are taking screenshot? Sir, writing. Sir, writing. Okay, okay. Once you have written it, please let me know, because these are the rules which we are going to use in writing the names of compounds. Done? No, sir. No, sir. Okay, okay, okay. ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहला है अपने को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब ये कंटिन्यूअस जो वर्ड है ना, दिस वर्ड प्लेस द ट्रिक। कंटिन्यूअस होना जरूरी है, वरना आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाता है।
कुछ भी नहीं समझेगा तो प्लीज आस्क मी. Done, guys? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. I think someone said no, sir. 2 लोग ने बोला yes. Done, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see. Now let us name this compound. Now this is तो N वाला normal pentane वाला compound है because straight chain ही इसका ही है. Now when I talk about straight chain, I'm talking about this. अच्छा, अब यहाँ पे longest straight chain कौन सा होगा? This is also a chain. This is also a chain. Longest बोले तो maximum ये वाला. यहाँ पे either this or this. Right? No? So we have structure 1, structure 2 and structure 3. ठीक है? Now see this. Which is the first rule? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ लो, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. Identify the longest continuous chain of the carbon atom. Excellent. Longest continuous chain. मतलब there should not be a break. There should not be a branch in between. ए बेटा, this is a chain. This is a continuous chain which I just showed you. देखो 1, 2, 3, 4, 5. कहीं पे भी ब्रांच चेन दिखा हम लोग को मिला बीच में? गाइस, कहीं पे भी ब्रांच चेन मिला हम लोग को? नहीं. No, नहीं. sir. No. No. अब सेकंड वाले पे आ जाओ. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. This is one chain. This is another chain. Which is the longest continuous chain? 3 or 4? 3 carbon Four. atoms or 4 carbon atoms? 4 carbon. Yes. So इस second वाले में longest continuous chain कौन सा हो जाएगा? ये. And this is your side chain. This is your branched chain. Yes, no, maybe ये हाँ सुना है आपने पहले. Yes, sir. Yes, अच्छा. yes. Let us go to the third structure. Third structure में मैं vertically लूँ या horizontally लूँ? सब जगह 3 कार्बन एटम्स ही आएगा लाइन में, है ना? हाँ. ये देखो. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. मतलब कैसे भी लूँ? 3 कार्बन एटम्स इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. बाकी का 2 साइड चेन होगा, राइट? Yes. Yes. H. Structure 1 is having 5 carbon atoms. Structure 2 is containing 4 carbon atoms in its longest chain. And 3 में 3 carbon atoms in the parent carbon chain. इसको अपन parent carbon chain भी बोलेंगे. तो parent इसका नेम क्या हो जाएगा? पहले वाले का पेंटेन, दूसरे वाले का ब्यूटेन, तीसरे वाले का पेरेंट नेम क्या हो जाएगा?
नहीं, 3 कार्बन आइटम, Propane. प्रोपेन, ऐसा बोलो ना बेटा, करेक्ट। सेकेंड रूल क्या है, नेम दिस लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन यूजिंग स्टैंडर्ड नेमिंग रूल। तो पहले वाले क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। स्ट्रक्चर 2 इज ब्यूटेन एंड स्ट्रक्चर 3 इज प्रोपेन। Propane. यहां तक समझा बेटा सब लोग को? ये दो रूल समझे। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, उसके बाद नेम दैट चेन एज द पेरेंट अल्केन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड नेमिंग रूल्स। हे कळालंय सगळ्यांना? हो सर. त्याच्यात काही डाऊट वगैरे आहे तर मला प्लीज सांगा आत्ताच, कारण उद्या आपण खूप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करणार आहोत। थर्ड वन देखो ना, फर्स्ट वन में कोई ब्रांचेस है? ब्रांचेस इन फर्स्ट वन? No. No. So it's an N-pentane, normal pentane. Simple. Structure 2 और 3 में लेकिन we have branches. Add the name of each side chain before the name of the root chain. Root chain कौन सा है? Pentane, butane, propane. This is the root chain. अभी मुझे भी देखो बेटा, सेकंड वाले में गेला माझा मार्कर हो, सेकंड वाला, this is the side chain. Now in structure 2 we will have to add methyl before butane. क्यों? Because इस continuous long chain में side chain is methyl, right? Yes. Yes. अच्छा, in the third structure this is the longest chain, so how many methyls are attached बेटा? 2. 2. तो 2 को हम क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल बोलेंगे, because there are 2 methyl groups attached. Yes. 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 ठीक है, डाई मिथाइल बोलेंगे because there are 2 methyl groups attached. मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिया हम लोगों ने। Now number the parent carbon chain so that the sum of the numbers assigned to each side group will be the least. अब इसका मतलब क्या है? You have to start numbering the carbon chain in such way so that the side chain gets the least number. अब देखो इसको नंबरिंग क्या है, सेकंड वाले को 1 2 3 4, साइड चेन को कौन सा नंबर मिला है बेटा? 2. साइड चेन को नंबर क्या मिला है? 2। अब अगर मैं ये एंड से नंबरिंग करता 1 2 3, तो कौन सा नंबर मिलता है साइड चेन को? 3. Which we are supposed to use, lowest number or highest number? Lowest. Number. So 2. always number the chain from that end such that the side chain gets the lowest number. तो इस साइड से हम लोग इसको ये करेंगे ताकि इसको 2 मिले, ठीक है? Yes. नीचे वाले में कहीं से भी करो, वो बीच में है, यहाँ से करोगे तो भी 2 आएगा, यहाँ से करोगे तो भी 2 आएगा, डजंट मैटर, राइट? Yes sir. अच्छा अच्छा, स्ट्रक्चर 2 में आई एम 1 2 3, ठीक है? तो कार्बन एटम नंबर 2 पे करेंगे बिकॉज दैट इज गिविंग द लीस्ट नंबर। इन 3 आप कहीं से भी कर लो, बीच में है वो, बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर गेटिंग द सेम नंबर 2। ये रूल्स पता है तुम लोगों को कि पहली बार सीख रहे हो? Then the next rule is number and name the side chains before the name of the parent carbon chain. उसका नंबर उसमें मेंशन करो। तो कौन से पोजीशन पे था सेकंड वाले स्ट्रक्चर में? सेकंड पोजीशन पे था, तो हम लोग को लिखेंगे वहां पे 2 methyl butane, ठीक है? But structure 3 has multiple side chains, more than one side chain at the same position. तो वो पोजीशन को मैं 2 बार लिखेगा, 2, 6 स्टेप आएगा यहाँ पे। If there are multiple side chains of the same type, use prefixes such as di and tri to indicate it and number each one. हर एक का नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा, भले ही सेम पोजीशन पे है। 2 नंबर 2 को रिपीट करो, 2, कितना है ग्रुप्स? 2 है, तो डाई मिथाइल प्रोपेन लिखा। ये Yes, sir. फॉरगेट अबाउट लिखा, ये समझा? ये Yes. 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 Yes, sir. पक्का? Yes. ये सीखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में, 10th में 9th में सीखा है बेटा ये अपन ने, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है?
अच्छा, ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस आई कुड नॉट टेक द लेक्चर ऑन बोर्ड, मैंने इसलिए वीडियो पे लिया। कल कैसा है, कल मैं आपको ये बोर्ड पे लूंगा ना, मैं खुद लिखूंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो टुमारोज लेक्चर ना बेटा, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकली सॉल्व दिस, जो मैंने आपको आज लिखा है। तो माई